Let's solve the questions of maths that came in CTET examination of January 23, 2023. The first question says, Shrikant purchased a bundle of tulip flowers having 5 pink, 10 red, 12 yellow and 4 white flowers. If each tulip flower has 6 petals, how many petals are there in the bunch? So, total number of flowers, we do not have to mind the colors, we have to mind the total number of flowers that Shrikant purchased. So total number of flowers are 5 plus 10 plus 12 plus 4. So there are 15 plus 16, that is 31 flowers. Okay. Now each flower has 6 petals. So how many petals will be there in total? How many petals? There will be 31 into 6, that is 6 and 18. 186 petals will be there and it is given at option number 4. So option number 4 is the correct answer. Next question is, numbers written in decreasing order are. So let's see what are the numbers that are given in the questions. The numbers are 3, 5, 6, 8, 2, 5, 4, 2, 5, 2, 4, 9, 2, 2, 5, 0 and 1, 2, 4, 8. We have to arrange in decreasing order. So let's find the biggest number. The biggest number is 5, 2, 4, 9. After that, the second biggest number is 3. 3, 5, 6, 8. Then we have two 2000 numbers, out of which 2542 is bigger than 2250 and the smallest number is 1248. So these are the numbers that are arranged in descending order. So let's find out in which option these numbers are given in this order. 5249, 3560, 2542, 22450 and 1247. So you can see it is given at option number 2. So option number 2 will be marked as the correct answer. You can once again check it. 5249, 3568, 2542, 2250 and 1248. So option number 2 is the correct answer, right? Next question is, first bunch of bananas has 1/4 access to as many bananas as in the second bunch. If the second bunch of bananas has 3 bananas less than that of the first bunch, then the number of bananas in the first bunch is. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट बंच और सेकंड बंच की बात हुई है, तो हम सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना होगा कि चलो फर्स्ट बंच के बनानास के नंबर को हम f मान लेते हैं और सेकंड बेंच के बनानास के नंबर को हम s मान लेते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट बंच के जो बनानास हैं वो क्या है, 1/4 एक्सेस टू एज मेनी बनानास इन द सेकंड बंच. तो फर्स्ट बंच ऑफ बनानास जो है 1/4 s से ज्यादा है of number of second bunch of bananas. तो फर्स्ट बंच ऑफ बनानास f इज इक्वल टू ये 5/4 s हो जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट बंच के बनानास हमें एक इक्वेशन मिल गए. नाउ द सेकंड बंच ऑफ बनाना जिसको हमने s माना है, वो कह रहे हैं कि वो फर्स्ट बंच से 3 कम है, मतलब फर्स्ट बंच से 3 कम है. तो जो सेकंड बंच ऑफ बनानास है वो कितने हैं, f-3 है. तो अगर हम इस f-3 जो s की वैल्यू है उसको अगर हम s की जगह रखते हैं तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. और हमारी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, f इज इक्वल टू 5/4 s जाएगा 4f इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 5f माइनस 5 3 15. देन 4f माइनस 5f इज इक्वल टू -15 या फिर माइनस f इज इक्वल टू 15 या फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो f इज इक्वल टू 15. सो number of bananas in the first bunch is 15, which is given at option number 4. So this is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है,
In number 998, if first and third digits are interchanged, then the difference between the original and the new number is. Original number क्या है? 998. अब क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर देना है. तो फर्स्ट थर्ड डिजिट फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट डिजिट थर्ड हो जाएगी और बीच वाले डिजिट वैसे ही रहेगी. अब कह रहे हैं इसके हम डिफरेंस को फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस कितना निकल जाएगा? 9 9 18, फिर ये 9 9 18. तो 99 का डिफरेंस आ रहा है. ये है ऑप्शन नंबर 4 पे. अगला क्वेश्चन, among the fractions 4 by 9, 11 by 12, 1 by 8, 5 by 36 and 7 by 52, which is the smallest fraction. तो जब इस तरह के अनइक्वल अनलाइक फ्रैक्शंस दिए जाते हैं तो हमें उनको लाइक बनाना होता है. तो पहले तो हम सारे फ्रैक्शंस लिख लें. 4 by 9, 11 by 12, 1 by 8, 5 by 36 and 5 by 72. लाइक बनाने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा. तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे. 2 9, 2 6 12, 2 4 8, 2 18 36 and 2 36 72. अगेन 2 से करेंगे. 9, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18 and 2 18 36. फिर अगेन 2 से करेंगे. 9 3 1 9 और ये 2 9 18. अब इसको 3 से करेंगे. 3 3 9, 3 1 1 1, 3 3 9, 3 3 9. अगेन 3 से करेंगे. 1 1 1 1 1. तो हमारे क्या क्या मल्टीपल्स हैं? 2 2 4, 4 2 8 और ये हो जाए 3 3 9 और 9 8 72. तो हमारा जो डिनोमिनेटर आया है वो 72 आया. अब हम इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे. 9 8 72. तो ये नीचे 72 और 9 4 8 32. 12 6 72 होता है तो 11 6 66 हो जाएगा. 8 9 72 होता है तो ऊपर 9 आ जाएगा. फिर 36 2 72 होता है तो 5 2 10 हो जाएगा. ये इक्वल ही रहेगा. अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है. सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा 5/72 है. ये ऑप्शन नंबर 4 पे हम इसको मार्क कर देंगे. अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 इज. प्राइम 1000 के कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं? तो प्राइम फैक्टर्स मतलब 1000 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करने पे ये पूरा डिवाइड हो सकता है. तो ये सबसे पहले 2 से देखेंगे. 2 500, फिर अगेन 2 250, फिर अगेन 2 125, फिर ये 5 से जाएगा. 5 25, फिर ये 5 से जाएगा. 5 5 एंड देन ये फिर 5 से जाएगा 1. तो नंबर ऑफ 5 फैक्टर्स कितने हैं? एक 2 है और एक 5 है. मतलब 2 और 5 इसके दो प्राइम फैक्टर है जिसको हम 1000 से डिवाइड कर सकते हैं. सो देयर आर 2 prime factors that can divide 1000 into its simplest unit. So answer will be marked as number 2, option number 2. Next question क्या कह रहे हैं? Next question कह रहे हैं, if sum of 921.20 and 212.85 is subtracted from the sum of 976.21 and 243.72, then what will be the result obtained? तो पहले इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करके देखना है. पहला नंबर है 921.20 and 212.85. इसका सम कितना आ रहा है? 5 8 9 10, 2 3 4, 3 9 10 11. एंड दो जो दूसरे नंबर्स है वो कितने आ रहे हैं? 976.21 एंड 243.72. इसका एडिशन क्या आ रहा है? 3 9 9 7 4 11 19 11 12. अब इसमें से इसको माइनस करना है. 1219.93 माइनस 1134.05 माइनस करेंगे. कितना आ जाएगा? 8 8 5 और ये 8. तो 85.88 आंसर आ जाएगा. ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 पे. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी lines of symmetry
symmetry are there in a circle? तो circle में as you know there are infinite number of line of symmetry. So option number 2 infinite mark हो जाएगा. अगला question. Using 6 equilateral triangles, you can make which of the following shapes? Shapes कौन-कौन से हैं? Regular pentagon नहीं बन सकता है, regular hexagon बनेगा, square भी नहीं बनेगा, octagon भी नहीं बनेगा, क्योंकि 6 से हम hexagon ही बना सकते हैं. So option number 2 regular hexagon या सम षटभुज ही बन पाएगा. अगला question. In the table given below, there are two columns x and y. Match the type of angles given in the column x with the measures of the angle given in column y. तो A है acute angle. Acute angle क्या होता है? 90 से कम होता है, जिसका ऑप्शन है D. B है obtuse angle. Obtuse angle क्या होता है? 90 से ज्यादा होता है, जिसका ऑप्शन है C. फिर स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, ये है ऑप्शन ए. और राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये है ऑप्शन बी. तो अब ये देख लेंगे ए डी बी सी सी ए डी बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है. ए डी बी सी सी ए डी बी ये वाला ऑप्शन देखो. ए डी बी सी सी ए डी बी. तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन. It is given that weight of 1500 coins is 9 kg. What is the weight of 2200 such coins? So ये unitary method है. अगर 1500 coins का weight है 9 kg या फिर 9000 grams, तो एक coin का कितना होगा? 9000 divided by 1500, that is 6. तो फिर 2200 कॉइन्स के कितने हो जाएंगे वेट? तो 2200 इंटू 6, ये हो जाएगा 13200 ग्राम्स. और अगर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 13.2 किलोग्राम आंसर आ जाएगा. ये है 13 किलोग्राम 200 ग्राम. ये ऑप्शन नंबर 2 पे 13 किलोग्राम 200 ग्राम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन. Seema purchased a sari of 5.1 meter length. She had a beautiful design on a tracing paper of 30 centimeter length. Using the tracing paper, she wants to trace one of the lengths of the sari with this design, which she will paint afterwards. How many times will she have to use this tracing paper to achieve her objectives? Okay, so जो लेंथ है साड़ी की वो है 5.1 मीटर या फिर 5.1 इंटू 100. क्यों किया? सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए. तो कितना हो गया? 510 सेंटीमीटर. जो डिजाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो टोटल अगर लेंथ 510 सेंटीमीटर, डिजाइन 30 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ पैटर्न कितने बनेंगे या नंबर ऑफ डिजाइन कितनी बार हमें यूज करना पड़ेगा? 510 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा 17 3 जा 51. तो 17 टाइम्स इसको ट्रेसिंग पेपर को यूज करना पड़ेगा. ये ऑप्शन नंबर 3 पे. अगला क्वेश्चन. व्हाट वाज द टाइम 4 hours 20 minutes बिफोर 9:10 AM? 9:10 में 4 घंटा 20 मिनट पहले क्या टाइम हुआ होगा? ठीक है, ये कह रहे हैं. तो 9:10 4 घंटा पहले अगर हम इसमें से 4 माइनस कर दे तो 4 घंटा पहले कितना हुआ होगा? 9 4 5 5:10 हुआ होगा. अब इसमें से 20 मिनट और कम कर देना है. तो 20 मिनट और कम करने के लिए अगर हम यहाँ से 10 मिनट हटा दें तो ये 5 बच जाता है और 10 मिनट और पीछे कर दे तो ये 4:50 हो जाता. मतलब 4:50 टाइम हुआ होगा. 4:50 AM. थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है 4:50 AM. तो ये देखकर आपका करेक्ट आंसर मार्क हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है. In a pictograph, number of persons reading 1000 newspapers were represented by using a particular symbol.
How many such symbols will the persons reading Hindi newspapers be represented if the number is 8500? Okay, so 1000 न्यूज़पेपर को करने के लिए एक कोई सिंबल यूज किया हुआ है। तो अगर 8500 पीपल को हमें सिंबल के थ्रू में यूज करना है तो हमें कितने सिंबल बनाने होंगे? 8500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा? 8.5 सिंबल्स हमें उसके बनाने होंगे। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 पे। नाउ study the pattern and write the missing number. 1 into 1, 11 into 11, 111 into 11, then 4 times 11 and 5 times 11. तो ये पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 4 3 2 1, मतलब 1 2 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड देन डिक्रीज होगा 4 3 2 1, तो क्या नंबर बना? 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। बाय बाय।